capacitor. Learning point first. First of all, teacher will clarify the difference between four using terms. One term is capacitor, another term is condenser, still another term is capacity, another term is capacitance. Please, you should understand first of all the difference in the four. Number one, all of these are represented by the symbol C. All of the four are represented by symbol C. Second thing, is there any difference between condenser and capacitor? No. One and the same thing. They are given two different names to the same thing. Now question arises, why we have given two names? Actually, this name is popular among scientists. And this name is popular among electricians. One class has recently joined. Let me tell you once again. I am going to clarify four confusing terms: capacitor, condenser, capacitance, capacity. These two things are 100% same. The only difference is this word is popular for the same component in the world of electricians. This word is popular for the same thing, same component in the world of scientists and student community. What is this? It is represented by this symbol. This is the symbol of the component capacitor. It is also represented by this way. There are two symbols. Now question arises, what should I understand from the word capacitor? पहले हमारी आम भाषा में कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बहुत से बच्चे मेरी तरफ नहीं देख रहे और पहला पॉइंट बता रहा है चैप्टर का, इसका मतलब उनका सारा चैप्टर वीक हो जाएगा. साइंस पॉइंट्स आर वेरी मच इंटरलिंक्ड. कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसके बीच में एनर्जी स्टोर करके रखी जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस एनर्जी को हम बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं. बाद में मतलब वी कैन इवन यूटिलाइज इट इवन आफ्टर 6 months. और ऐसा करने के लिए इस कैपेसिटर को अपनी दोनों प्लेटों में से एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर करना पड़ता है जो कि हायर पोटेंशियल पर होगी, और उसके सामने वाली प्लेट पर बराबर की क्वांटिटी का नेगेटिव चार्ज स्टोर करना पड़ता है. ऐसा क्यों? क्योंकि सभी बच्चों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव. नाउ लेट मी टेल यू इन द प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज, capacitor is an electrical component in which energy can be stored in the form of electric field, and to store that energy, electric field has to be settled up from positive plate to negative plate. Therefore, the plate of the capacitor which is at higher potential
will be having positive charge. The opposite front plate, which is at lower potential, will be having equal negative charge. And this charge is, if say Q positive, and if this charge is say Q negative, their magnitudes are equal. Their magnitudes are equal. And everybody knows from positive plate to negative plate, electric field is settled. Electric field is settled. ओके, तो सभी बच्चे ये फिगर बना लें प्लीज कॉपियों पे, फिर मैं आपको डिक्टेशन लिखाता हूँ. प्लीज मेक दिस फिगर. Few students are not making the figure. Even none of the student is making the figure in medical students. Teacher is saying, draw this figure, and nobody is using the pen. Accordingly. Now sit down. I am telling you what is the answer of what is a capacitor. I am dictating the answer of that. Write down. Shabash. Capacitor is an electrical component. Capacitor is an electrical component which stores the energy in the form of electric field. Which stores the energy in the form of electric field. In the form of electric field. Second point इसी में. To do, this is first point, which is the definition. Second point, to do this, one plate of the capacitor will be having positive charge. One plate of the capacitor will be having positive charge, and the front plate at lower potential and the front plate at lower potential will be having equal negative charge. Will be having equal negative charge. ओके. तो कोई मेरे से बच्चा पूछे कि सर क्या मैं कंपोनेंट कैपेसिटर कंपोनेंट को हाथ में पकड़ सकता हूं? यस, यू कैन स्टोर इट इनटू, यू कैन होल्ड इट इनटू द हैंड. कोई बच्चा बोले सर इसका साइज कितना होता है? इसका कम से कम साइज होता है इस पेंसिल की टिप जितना पेंसिल को हमने गढ़ा हुआ है, इतना कम से कम साइज होता है इसका. और ज्यादा से ज्यादा साइज इसका इसके बराबर हो सकता है. ज्यादा से ज्यादा साइज इसके बराबर. तो कैपेसिटर का जो साइज होता है वो इतने से लेकर लगभग मेरे हाथ के बराबर तक हो सकता है फिजिकल लाइफ में अगर आप देखोगे. अब दूसरी बात यह है कि सर फिर आपने दो टर्म्स और लिखी हुई हैं, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस. ये क्या चीज है? योर अटेंशन, ध्यान से देखना होगा बेटे. ये जो दोनों मैंने वर्ड लिखे हैं कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, ये दोनों एक ही चीज है. पहली बात, कैपेसिटी वर्ड पॉपुलर है साइंटिस्ट में और कैपेसिटेंस वर्ड पॉपुलर है इलेक्ट्रीशियंस में. और कोई फर्क नहीं. दोनों को सी सिंबल से लिखते हैं. अब बच्चे कहते हैं सर ये होता क्या है? ये इस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है. इस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? जिस प्रॉपर्टी की काबिलियत की वजह से ये कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर पाता है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी कैपेसिटर की ये
खूबी जो होती है ज्यादा होती है, किसी कैपेसिटर में यही खूबी कम होती है। कोई ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई कम स्टोर कर पाता है। लेकिन इस खूबी का जो नाम है, कौन सी खूबी, कौन सी प्रॉपर्टी, कि कैपेसिटर नाम का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर कर लेता है। इस कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। करेक्ट। फिर कोई बच्चा मेरे से पूछेगा, सर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा है या कम है, इसको हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए इस प्रॉपर्टी को मापने के लिए कि ये ज्यादा है या कम है, कैपेसिटी की इंटरनेशनल यूनिट है एक, जो वर्ल्ड वाइड सिलेक्ट कर रखी है, और उस यूनिट का सिंबल है बेटे कैपिटल एफ, और हम उसको फैरेड बोलते हैं। Got it? लिखो सेकंड पॉइंट, शाबाश, राइट डाउन। हेडिंग लिखो, व्हाट इज कैपेसिटी, व्हाट कैपेसिटी, शाबाश। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, capacity of a capacitor is the property, capacity of a capacitor is the property of the component capacitor. I repeat, capacity of a capacitor is the property of component capacitor because of which capacitor is able to store the energy in it. Capacitor is able to store the energy in it. जो बच्चे लिख नहीं रहे ना बेटे, देख लेना, एक दिन वो बोर्ड के एग्जाम में याद करेंगे कि काश मैंने लिख लिया होता। तो ये मैंने अपने बच्चों को समझाया। और एक लिखो, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। लो बेटे, अब मेरे पास ये नाम है आपके, मैं पूछना चाहता हूं, एक बच्चा है प्यारा सा आस्था, मेडिकल में आस्था, प्लीज स्टैंड अप, शाबाश, आ जाओ बेटे, माइक पे आ जाओ आस्था। मैं देखना चाहता हूं आपने ध्यान से सुना या नहीं। आप मेरे को डिफरेंस बताओगे बेटे, कैपेसिटर और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है? अगर ध्यान से सुना होगा, अगर कैरियर के प्रति कॉन्शियस हो, अगर बोर्ड में कंपार्टमेंट नहीं लेनी तो पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड कैपेसिटी? देख लो बेटे, आपने छोटी सी बात नहीं सुनी। इस बार गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अपने एजुकेशन की नॉलेज बच्चों की वीक हो रही है, एक भी बच्चे की नकल नहीं आएगी बोर्ड के एग्जाम में, मैं बता दूं आपको। एक न्यूज है, अपने टीचर्स को भी बता देना। सेकंड बच्चा आ जाए मेडिकल में, अनूप कौर, प्लीज कम ऑन द माइक। कौन बच्चा है अनूप कौर? आ रहा है या नहीं बेटे? अनूप बेटे, आपने बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट which stores the energy, और फिर कैपेसिटी है प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। शाबाश, बैठो। तो इस बच्चे ने बिल्कुल ध्यान से सुना, इसने मेरे को ये बताया कि सर मान लो ये एक इंसान है, तो आप मेरे से पूछो ये कौन है, आई विल से ह्यूमन बीइंग। फिर आप मेरे से पूछो ये क्या चीज है, तो आप बोलोगे सर इस ह्यूमन बीइंग की एक प्रॉपर्टी है जिसको आप हाइट कह सकते हो। इसी तरह से
हमारा ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर, उसकी एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटी। कैपेसिटर क्या है बेटे? कंपोनेंट, जिसको हाथ में पकड़ सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। कैपेसिटी क्या है? प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी ज्यादा है या कम है, उसको मापने के लिए इंटरनेशनल यूनिट यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं? फैरेड। इतनी बात बताई टीचर ने अभी तक। अब एक बच्चा कहता है सर आपने एक सिंबल ऐसा भी बनाया था जिसमें आपने कैपेसिटर सिंबल बना के कैपेसिटर का और यहाँ एरो लगा दिया था, इसका क्या मतलब है? तो मैं बताना चाहूंगा, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी फिक्स वैल्यू की हो, उसको हम चेंज ना कर सके, एक बार मैन्युफैक्चरर ने जितनी बनाकर देनी थी दे दी, उसको तो हम बनाते हैं सिंबल ऐसे। लेकिन जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी हम एज ए कस्टमर खरीदने के बाद चेंज कर सकते हो, वो वेरिएबल कैपेसिटर ऐसे बनाया जाता है। यानी कि जब एरो लगा हो, दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर, दिस इज द सिंबल ऑफ फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर। फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर। गॉट इट? लो अब एक क्वेश्चन नॉन मेडिकल के बच्चों से पूछ के देखते हैं क्या उन्होंने ध्यान से सुना या नहीं। अनमोल सिंह, प्लीज कम ऑन द माइक। अनमोल, प्लीज कम ऑन द माइक बेटे। आवाज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटे, क्या आप बता सकते हो कैपेसिटर और कंडेंसर में क्या डिफरेंस है? कैपेसिटर और कंडेंसर में। अनमोल, अनमोल, बहुत उदास किया बेटे टीचर ने। 2 पॉइंट बताए हैं, उनमें से एक आपने सुना नहीं। वेरी सैड। गुरबीर सिंह, इसी क्लास में। गुरबीर सिंह, हाँ बेटे, आप बताओ, मैंने 2 वर्ड बोले, कैपेसिटर और कंडेंसर, दोनों में क्या फर्क है? सर कैपेसिटर और कंडेंसर दोनों सेम ही चीज है, बस इसका नाम सुनो, क्या? फिर से बताओ बेटे, प्लीज स्पीक आउट अगेन। सर कैपेसिटर और कंडेंसर दोनों सेम ही चीज है। बहुत अच्छे, शाबाश। इस बच्चे ने ध्यान से सुना कि सर आपने ना एक कंपोनेंट बनाया था, उसी का नाम आपने कैपेसिटर बोला था और उसी का नाम आपने कंडेंसर बोला था। बस सिर्फ हमने ये बताया था कि ये वर्ड इलेक्ट्रीशियंस की दुनिया में ज्यादा पॉपुलर है और ये वर्ड साइंटिस्ट की दुनिया में ज्यादा पॉपुलर। बैठो, शाबाश। सेकंड वाले बच्चे को शाबाश दी जाएगी, फर्स्ट वाले बच्चों को समझ लो मैंने थोड़ी सी डांट लगा। अब आगे भी क्वेश्चन ध्यान से मैं पूछता रहूंगा आपसे। एक चीज और बढ़ते हैं बेटे आगे, ध्यान से सुना। सर इस कैपेसिटर को, ये कैपेसिटर हमारा काम कैसे करता है? तो मैंने पहले ही बता दिया था बेटे, कैपेसिटर के एक साइड पर आपको पॉजिटिव चार्ज स्टोर करना पड़ता है, दूसरी साइड पर आपको नेगेटिव चार्ज स्टोर करना पड़ता है। और ये दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं, चाहे ये वाला ले लो या ये वाला ले लो। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर हम ऐसा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? बेटे पहली बात, क्यों का जवाब दे देता हूं। वाई वी डू सो, वाई वी डू, वाई डू वी डू दैट? तो इसका आंसर है बेटे, अभी अभी टीचर ने बोला था कि कैपेसिटर अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये नियम है कि वो
हायर पोटेंशियल वाली प्लेट से लोअर पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ डायरेक्टेड होता है हमेशा। और हायर पोटेंशियल वो होती है, पिछले लेक्चर को याद करो, जिसमें पॉजिटिव चार्ज की अकमुलेशन हो जाए। और लोअर प्लेट वो होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की अकमुलेशन हो जाए। अगर कोई बच्चा भूल गया हो पोटेंशियल के बारे में तो मैं याद कराऊं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको टेररिस्ट कैंप और दरबार साहब की एग्जांपल लेके समझाया था, गोल्डन टेम्पल की। शायद आपको याद हो गया होगा कि हायर द अकमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट ए प्लेट और ए पॉइंट, मोर इज इट्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। इसका मतलब एक प्लेट का हायर पोटेंशियल पे होना, एक प्लेट का लोअर पोटेंशियल पे होना जरूरी है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तभी वो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने में कामयाब हो पाएगा। अब दूसरी बात यह है कि सर हाउ डू वी डू इट, इसको करते कैसे हैं? हाउ डू वी डू इट? तो इसका आंसर है बेटे, हम कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स को हम यहाँ पर कॉपर की वायर्स से जोड़ लेते हैं और कॉपर की वायर्स को आगे बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो लंबी वाली लाइन पॉजिटिव होती है, छोटी वाली लाइन नेगेटिव होती है। और इस सर्किट को ऑन करने के लिए इस स्विच को ऑन कर देते हैं ऐसे दबाकर। इसको की भी बोल सकते हैं, स्विच भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं बैटरी। और बैटरी में गौर, बैटरी इज व्हाट? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे टीचर ने इस फिगर के अंदर 3 सेल लगा रखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक सेल, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरा सेल, पॉजिटिव नेगेटिव तीसरा सेल। तो मैंने 3 सेल लगाए, आप ज्यादा भी लगा सकते हो। तो बैटरी को बारे में अगर कोई आपसे पूछ ले तो आपने बोलना है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब कोई बच्चा मेरे से पूछे सर जो मार्केट में हम टॉर्च के अंदर बैटरी डालते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में? जो हम मार्केट में लंबी वाली रॉड वाली टॉर्च के अंदर बैटरी डालते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ठीक है, लेकिन हम ज्यादा सेल भी ले सकते हैं। जैसे बच्चा कहता है सर आपने 3 लगाए हैं, 1 2 3, तो फिर ये बैटरी आपकी कितनी होगी? तब मैं उसको बोलूंगा बेटे अगर मैंने 3 लगाए हैं तो मैं इसको 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 यानी कि 4.5 वोल्ट कह सकता हूँ, बशर्ते कि ये जो सेल लगा हुआ है ये मार्केट में मिलने वाला ड्राई सेल हो। ड्राई सेल बोलते हैं उसको, जो टॉर्च में डाला जाता है। रिमोट टीवी के रिमोट में भी यही डलता है। ओके, तो अब इस बैटरी का कितने वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया उसको हमने वी, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना स्टोर हो गया उसको हम क्यू बोल देते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो कैपेसिटर बनाया है मैन्युफैक्चरर ने, अगर कोई मेरे से पूछे सर मैन्युफैक्चरर ने इसकी कैपेसिटी कितनी बनाई, तो डेफिनेशन के मुताबिक ध्यान से सुनो, एक बार हमने ये काम कर लिया, प्लेटों को हायर और लोअर पोटेंशियल पे सेट कर दिया, तो दिस कैपेसिटी इज डिफाइंड एज कि कितना चार्ज स्टोर करा है, और उस चार्ज को स्टोर करने के लिए तो वोल्ट की बैटरी का फायदा लिया गया है। इसके मुताबिक है कैपेसिटी का फार्मूला, बाय गिवन बाय साइंटिस्ट नॉट बाय मी। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने ऐसा कैपेसिटर बना दिया कि वो छोटी से छोटी वोल्टेज लेकर, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, छोटी से छोटी बैटरी लगाने पर अपनी प्लेटों पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करे, तो उस कैपेसिटर ने ऐसा कैपेसिटर बनाया है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, यानी कि वो कैपेसिटर अच्छी एनर्जी स्टोर कर पाएगा और हमारा बैटरी का खर्चा भी कम आएगा। गॉट इट? तो यहां से ध्यान से देखना जरा बेटे,
जब दो चीजें आपस में बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, योर अटेंशन, बीच में डिस्टरबेंस करोगे तो सारा चैप्टर खत्म है, मैं बता दूं। अगर आप कोई बच्चा बोले सर अगर मैं इधर कैपेसिटी ले लूं और इधर बैटरी ले लूं और उसको वेरिएबल बना दूं बैटरी को, तो क्या इनका ग्राफ कैसा होएगा? तब मैं उस बच्चे को बोलूंगा बेटे अब गौर से देखो, कैपेसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब जो दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो ग्राफ हमेशा रेस्ट चेयर की तरह आता है। ऐसे ग्राफ को मैथ की लैंग्वेज में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और कोई बच्चा बोले सर कैपेसिटर और चार्ज में कैसा ग्राफ होएगा, तब मैं उसको बोलूंगा बेटे एक तरफ कैपेसिटी ले लो, एक तरफ चार्ज ले लो, और क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर साइड में है इसलिए कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो वहां से हमारा जो ग्राफ आएगा वो हमेशा ही लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन आएगा। लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। जिन बच्चों को ये पूरा समझ आ गया है वो अपने टीचर को इंडिकेशन देंगे बाय रेजिंग योर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड सो फार? I am waiting the response from non-medical students. शाबाश, सभी बच्चों ने पकड़ी है मेरी बात। That is why all of the students have raised their right hand. Okay? तो बच्चे, समझदार बच्चा अभी कॉपियों पर ये फार्मूला लिख लेगा, समझदार बच्चा अभी कॉपियों पर ये फिगर बना लेगा। दो चीजें बस करनी है, एक ये फिगर बनाना है और ये एक फार्मूला लिखना है। और भी ज्यादा करना चाहते हो तो ये ग्राफ नोट करो, ग्राफ, दो ग्राफ। और अब मैं इसको इरेज करने लगा हूं। शाबाश, आई एम गोइंग टू इरेज। एक बच्चा मेरे को बोलता है, ध्यान से सुनना बेटे, सर अभी अभी आपने बोला लेट मी चेंज द कलर फॉर बेटर विजिबिलिटी। अभी अभी आपने बोला सर कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, आपने बोला, और वहां से हमें आपने ये भी बता दिया कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और आपने इन दोनों का ग्राफ बनाया था लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। फिर आपने ये भी बता दिया कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, तो आपने इन दोनों का जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे करके हमें समझा दिया। तो हमें ये भी समझ आया, ये भी समझ आया। लेकिन एग्जामिनेशन में कई बार अपने बच्चों को तंग करने के लिए वो एक नया ग्राफ पूछ लेते हैं जो कि इवन किताबों में अवेलेबल नहीं है कि सर एक तरफ कैपेसिटी ले ले और एक तरफ पोटेंशियल का रेसिप्रोकल ले ले। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन के सारी की सारी लेफ्ट चीज इधर लिख दो और सारी की सारी राइट चीज इधर लिख दो, टोटल लिखनी है टोटल, तब फिजिक्स के अंदर कहीं पर भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हो, सारी चीज इधर लिखी हो और सारी चीज इधर लिखी हो, तब इसका ग्राफ हमेशा ही याद रखना है लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ मैंने पहले नहीं बनाया था, समझदार बच्चा बना लेगा। लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ not available in the books but asked in the board exams many times. अब आगे चलते हैं। कुछ देर पहले मैंने इस कैपेसिटी की एसआई यूनिट का नाम बताया था, एसआई यूनिट का नाम, और मैं ये पूछना चाहता हूं, एक बच्चा है हमारे नॉन मेडिकल में प्यारा सा, गुरबीर सिंह, शाबाश, हु इज गुरबीर सिंह? बुला लिया क्या पहले मैंने? गुरबीर सिंह को बुला लिया कि नहीं पहले बेटे? हाँ बैठो बैठो, आप बैठो। मैं फिर बुलाना चाहता हूँ, चलो, अशनीत कौर मेडिकल, अशनीत कौर मेडिकल, प्लीज कम ऑन द माइक। आई वांट टू चेक योर लिसनिंग कि आपने ध्यान से सुना है कि नहीं। अशनीत कौर,
बेटे आपने आते आते साइडों वाले बच्चों से पूछने की कोशिश करी, विच इज अ रॉन्ग थिंग। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप आते आते पूछ रहे हो बाकी बच्चों से। इतनी छोटी उम्र में डिसऑनेस्ट हो गए आप। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटी? फैराडे। फिर भी रॉन्ग, क्योंकि अच्छे से सुना नहीं आपको। फैराडे नहीं बोलना इसको, फैरड बोलना। फैरड। तो बैठो आप, जिस चीज से आप कंफ्यूज हो गए, मैं बताता हूं इस बच्ची ने फैराडे क्यों बोल दिया। एक केमिस्ट्री में टर्म है फैराडे, केमिस्ट्री की टर्म है, वो फिजिक्स की नहीं है। उसमें 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96487 क्यूलम। कभी कभी आप इसको इतना भी लिख देते हो अगर अप्रोक्सीमेटली लिखना हो तो। इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना, ये केमिस्ट्री की टर्म नहीं बोल रहा मैं फिजिक्स की टर्म बोलता हूं, जो कि इंटरनेशनल यूनिट है कैपेसिटी प्रॉपर्टी की। कौन सी? फैरड। अब हमने इस फैरड को समझना है, ये आखिर कितनी वैल्यू की कैपेसिटी को 1 फैरड बोलेंगे। ध्यान से सुना। हम क्या करेंगे, हमने एक कैपेसिटर लिया और उस कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ दिया। कोई बच्चा मेरे से पूछे, सर आपने ये बैटरी जो ली है वो कितने वोल्ट की ली है? तो मैं कहूं बेटे मैंने ये जो बैटरी ली है ये 1 वोल्ट की ली है। ओके, तो जब आपने इस बैटरी 1 वोल्ट की बैटरी से इस कैपेसिटर को चार्ज करा, तो उसकी पॉजिटिव प्लेट या फिर इक्वली नेगेटिव प्लेट, दोनों में से कोई एक चार्ज कितना आया आपका, कितना? तो मैं कहूंगा बेटे मैन्युफैक्चरर ने ये ऐसा कैपेसिटर बना के दिया मेरे को कि जब मैंने इस चार्ज को नोट करा वो 1 क्यूलम निकला। COULOMB, क्यूलम मैंने चार्ज की यूनिट। 1 क्यूलम का चार्ज पाया गया इस कैपेसिटर की एक प्लेट पर, जब नीचे बैटरी 1 वोल्ट की लगाई। अगर मेरे को मैन्युफैक्चरर ने ऐसा कैपेसिटर बना के दिया जो ये काम कर सकता है, तब मैं उसकी कैपेसिटी को 1 फैरड बोलूंगा। 1 फैरड बोलूंगा। सर बच्चा कहेगा सर आपने ये जो लैंग्वेज बनाई है ली कहां से? मैं कहूंगा बेटे यहां से, फार्मूला देखो, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। मैंने चार्ज को 1 क्यूलम डाला और पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट डाला, तो जब 1 क्यूलम को 1 वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, आंसर 1 ही आएगा। और कैपेसिटी की 1 यूनिट का मतलब क्या? 1 फैरड। 1 फैरड। तो आप आम लैंग्वेज में क्या बोलेगा, फिर मैं इंग्लिश में बोल के दिखाऊंगा कि किसी मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाए गए कैपेसिटर की कैपेसिटी 1 फैरड के बराबर होगी अगर उस कैपेसिटर में ये खूबी है, ये खासियत है, ये काबिलियत है कि जब उस कैपेसिटर को 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जाए तो वो अपनी किसी एक प्लेट पर 1 क्यूलम चार्ज स्टोर करने की काबिलियत रखता हो। अब इंग्लिश में बोलता हूं फिर हम लिखेंगे, और ये पेपर में पूछी भी गई है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर is said to be 1 farad if it is able to store 1 coulomb of charge under an applied potential difference of 1 volt। यहां से मेरे को बच्चा बोल सकता है सर इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं ना 1 farad is equal to 1 coulomb अपॉन 1 वोल्ट, ऐसे भी कह सकता हूं ना? बिल्कुल कह सकते हो, इसी की तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज बनाई है। लिखो सभी बच्चे, डिफाइन 1 फैरड। क्वेश्चन, डिफाइन 1 फैरड। अब लिखो आंसर। आंसर बेटे, कैपेसिटी ऑफ द कंपोनेंट कैपेसिटर, capacity of the component capacitor will be 1 farad, will be 1 farad
if it is able to store 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge on any of its two plates, on any of its two plates, under an applied potential difference of 1 volt, under an applied potential difference of 1 volt. इतनी डेफिनेशन लिखने के बाद सभी बच्चे ये भी लिख दो, 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। ये बॉक्सा बना दो बेटे, 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो आगे बढ़ते हैं, शाबाश। बेटे एक मैं चीज बताना चाहूंगा बीच में पढ़ाई के, एक मेरे पास बच्चा आया था +2 का पिछले साल। वो कहता सर जब आप समझाते हो ना बहुत अच्छा समझ आ गया, लेकिन हमें ये डाउट रहता है कि इस आर्टिकल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे पेपर में। बोर्ड के पेपर में ये आर्टिकल आपने पूरा समझा दिया, इसमें ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे। आप बीच बीच में बताते भी हो लेकिन सारे नहीं बता पाते होगे, तो मेरे को क्या करना चाहिए कि मेरे को उन क्वेश्चंस का फॉर्मेट पता लगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था उस बच्चे के द्वारा। तो मैं बताना चाहूंगा मार्केट के अंदर मैंने सिर्फ एक किताब ऐसी देखी जो पूरे सिलेबस को क्वेश्चन आंसरों के रूप में कवर करती है, सिर्फ एक किताब। बाकी की किताबें कोई आर्टिकल छूट रहा है, किसी पे क्वेश्चन बन रहा है, किसी पे नहीं बन रहा है। एक ही किताब है जो सीरियल वाइज आर्टिकल को पिक करके उस आर्टिकल को क्वेश्चन आंसरों में तब्दील करके लिखी गई है, बड़ी अच्छी किताब है। तो उस किताब का नाम है मूव फास्ट विद फिजिक्स, मूव फास्ट विद फिजिक्स। ये वो किताब है, लिख लेना चाहिए समझदार बच्चे को। ये क्वेश्चन और आंसर्स के रूप में आपका सिलेबस कवर करेगी, आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। इसी पब्लिशर की, धनपत राय पब्लिशर की और किताबें भी आती हैं, वो मत ले लेना। इस बुक के फ्रंट के ऊपर ये छपा हुआ होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, लो या ना लो। मैंने आपको एक एज ए टीचर आपको गाइड कर दिया कि किस बुक में अच्छे क्वेश्चन आंसर दिए, वो भी सिलेबस सारा कवर करता है। अब बेटे और बताओ, कोई बच्चे बोलते हैं सर अगर 2 कैपेसिटर ऐसे लगे हो, एक कैपेसिटर ये लगा C1, एक कैपेसिटर ये लगा C2, तो इस सर्किट को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट ऑफ कैपेसिटर्स। सर तब क्या होएगा अगर मैं एक और कैपेसिटर भी लगा दूं रास्ते में, तो तब भी ये सीरीज कैपेसिटर ही होगा, ये सीरीज नेटवर्क ही होगा। एक बच्चा कहता है सर तब क्या होएगा अगर मैं बीच में से एक ब्रांच कैपेसिटर निकाल के नीचे को लगा दूं तब? देन आंसर इज, ये जो ब्रांच रेजिस्टर बीच में से निकल रहा उसका दूसरा टर्मिनल यहां पर हवा में लटका होना चाहिए, दिस शुड बी ओपन, तब भी ये सीरीज सर्किट ही रहेगा तीनों का। ओके बेटे, तब भी ये सीरीज में रहेगा। अगर कोई बच्चा मेरे से बोले सर अगर इसकी साइड पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, बीच में से ब्रांच कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन वो आगे से हवा में नहीं लटका हुआ, ओपन नहीं है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड कहीं और वो इलेक्ट्रिकली जुड़ा हुआ है, तो क्या C1 C2 C3 तब भी सीरीज में है? नो,
तब सीरीज में नहीं है, यानी कनेक्टेड वाला नहीं होना चाहिए। ओपन कैपेसिटर लगा हो सकता है और ये दोनों ही ब्रांच कैपेसिटर नहीं हो, तब भी C1 C2 C3 को सीरीज में कहा जा सकता है। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर ये जो सर्किट आपने ग्रीन कलर का बनाया है, इसमें आपने C कैपेसिटर को और CB कैपेसिटर को कौन से सर्किट में बनाया है, तो मैं बोलूंगा बेटे ये पैरेलल सर्किट में है। सर पैरेलल में कैसे कह सकते हो, मैं कहूंगा बेटे मान लीजिए एक विलेज है X और दूसरा विलेज है Y, और गांव के बंदों ने, निवासियों ने, विलेजर्स ने, बीच में से नदी बह रही है, तो यहां से यहां जाना है, चाहे वो ऊपर से चले जाए चाहे वो नीचे से चले जाए, तो इन दोनों को बोलेंगे पैरेलल पाथ। इसका मतलब अगर किसी कैपेसिटर के एक साइड किसी कॉमन टर्मिनल पर पहुंचती हो और दूसरी साइड भी किसी कॉमन टर्मिनल पर पहुंचती हो, तब इस सर्किट को पैरेलल सर्किट बोलते हैं, पैरेलल सर्किट ऑफ कैपेसिटर्स। एक बच्चा बोलता है सर तब बताना अगर मैंने इसके साथ अगर तीसरा कैपेसिटर भी लगा दिया, मान लो वो कैपेसिटर CX लगा दिया मैंने, तो मैं कहूंगा बेटे व्हाइट वाले कैपेसिटर की भी आपने X और Y तक वायर्स पहुंचा दी हैं कॉपर की, इसका मतलब अभी भी ये पैरेलल सर्किट है। एक बच्चा मेरे को कहता है सर तब बताना अगर मैं यहां से एक ब्रांच कैपेसिटी निकाल देता हूं, ये जो ये मान लो पिंक कलर की मैंने ब्रांच कैपेसिटर एक और लगा दिया C', अब यहां से मैंने इसको ओपन रखा हुआ है, ओपन, तो बताओ क्या अभी भी ये तीनों पैरेलल में है? आंसर है कि ब्रांच कैपेसिटर निकले और वो ओपन में हो, तब भी CA CB और CX अभी भी ये पैरेलल सर्किट है। एक बच्चा कहता है सर अभी बताना, मान लो मैंने यहां से ब्रांच कैपेसिटर लगा दिया और C" है उसकी वैल्यू, और उसको मैंने आगे कहीं जोड़ दिया बिजली से, वो कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। अब बताओ क्या अभी भी CA CB CX पैरेलल में है? यस, अभी भी पैरेलल में है। जबकि सीरीज में मैंने कनेक्टेड वाला कैपेसिटर बोला था नॉट अलाउड फॉर दिस सर्किट टू बी ए सीरीज सर्किट, लेकिन पैरेलल में कनेक्टेड सर्किट भी अलाउड होता है, तब भी ये सीरीज में रहेंगे। अगर ये लगा हुआ है, दोनों लगे हुए हैं साइड पे ब्रांच रेजिस्टर, तब भी ये सीरीज में, और दोनों गायब हैं तब भी ये सीरीज में। अकेला पिंक वाला लगा हुआ ओपन वाला, सॉरी सीरीज बोल दिया हर बार, पैरेलल बोल रहा, तब भी ये पैरेलल में लगा हो कनेक्टेड रेजिस्टर ब्रांच वाला, और ब्रांच वाला ओपन हो, या ये दोनों लगे हो या ना लगे हो, या दोनों में से एक लगा हो, ये तीनों के तीनों कैपेसिटर पैरेलल में बोले जाएंगे। यानी कनेक्टेड रेजिस्टर अलाउड, ओपन रेजिस्टर अलाउड, ओपन रेजिस्टर अलाउड, कनेक्टेड रेजिस्टर नॉट अलाउड। तो जब टीचर ने अपने बच्चों को पैरेलल सर्किट समझा दिया, सीरीज सर्किट समझा दिया, तब उनके फार्मूले भी बताने चाहिए कि आखिर टोटल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। योर अटेंशन, अगर मेरा सीरीज कैपेसिटर हो, ध्यान से सुन लेना, अब अगर मेरा सीरीज कैपेसिटर हो तो मैं A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में नेट कैपेसिटी आपसे पूछ लूं, तो कैसे निकालनी है? तो उसका आंसर सुन लो, सीरीज के अंदर उसका आंसर होएगा बेटे ये CAB, इसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फार्मूला है। एक बच्चे कहते हैं सर वेट वेट वेट, जब हम 10th क्लास में थे ना, तब इन कैपेसिटरों की जगह हम रेजिस्टर लगाया करते थे, R1 R2 R3, तब तो हमने रेजिस्टर A और B के बीच में निकालना होता था, तब तो हम इनको डायरेक्ट ही ऐड कर देते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3। यस, रेजिस्टर्स में
ऐसे डायरेक्ट ऐड करना था 10th क्लास नॉलेज, लेकिन प्लस 2 में आप कैपेसिटर पढ़ रहे हो। कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे तो उनके रेसिप्रोकल ऐड होते हैं और रिक्वायर्ड कैपेसिटी का भी रेसिप्रोकल होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इतने साल पढ़ाने के बाद सभी बच्चे पेपर में इसका डाटा यहाँ रख के इनको सॉल्व कर देते हैं। जैसे ये 3 फैरेड का हो, ये 4 का हो, या 5 का, 3, 4, 5 सॉल्व भी कर देते हैं और उसी को आंसर लिख के आ जाते हैं। यानी कि बाद में रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। जब भी इनको वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, और आंसर तो आपको सीए भी चाहिए, ये तो 1/CAB का आंसर है, तो आखिरी वाले स्टेप में जाकर जितना आंसर आया उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तब आपको आंसर मिलेगा। एग्जांपल से बताऊं, मान लो इनका डाटा पुट करने से यहां पर आंसर आ गया 4/7 और आपकी कैपेसिटी का आंसर फिर होएगा 7/4। रेसिप्रोकल करना। आप इधर आ जाओ सर, अगर ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों तब कैपेसिटी कैसे निकालनी होती है? तो याद रखना, एक्स और वाई में कैपेसिटी पूछेगा वो, बड़े वाले एक्स और वाई। अगर रजिस्टर कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों तब आप इन तीनों कैपेसिटरों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, सी ए, सी बी और ये जो एक्स्ट्रा लगाया था हमने सी एक्स। कोई बच्चा बोले सर इनका क्या करना है, इनका ये बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल जो चीजें तीनों पैरेलल हैं उनको डायरेक्ट ऐड किया जाता है। तो कोई बच्चा मेरे से पूछे सर मैं मोटी मोटी बात बताऊं आपको, आप यस और नो बोलना। अगर तो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं तो उनकी कैपेसिटियों को डायरेक्ट ऐड करके हमें टोटल कैपेसिटी मिल जाएगी। जैसे कि ये 10 फैरेड हो, ये 20 हो और ये 30 हो, तीनों को ऐड करा तो 60 फैरेड हमारा आंसर आ जाए। मैं कहूंगा यस, 10 + 20 + 30 ओवरऑल 60 फैरेड हो जाएगा। तो दूसरी तरफ सर अगर ये पैरेलल सीरीज में लगे हुए हैं तो हम इनको डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते, उनके रेसिप्रोकल्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जो आंसर आएगा उसको बाद में घुमाना पड़ेगा, तब हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा कैपेसिटी बिटवीन दी एक्सट्रीम टर्मिनल्स ए एंड बी। जब अगर बच्चा मेरे से ऐसे बोले तो मैं कहूंगा बेटे आपने जो भी बोल रहे हो बिल्कुल सही समझा आपने, टीचर भी यही कहना चाहिए। अब एक बार देख लो, टीचर आपसे पूछने लगा हुआ है क्या दोनों कैपेसिटर सर्किट कैसे होते हैं और दोनों के फार्मूले आपको समझ आ गए या नहीं आ गए। अगर आपको समझ आ गए तो आपको राइट हैंड खड़ा करना पड़ेगा। हैव यू अंडरस्टूड सीरीज एंड पैरेलल और नॉट? बेटे रिस्पॉन्ड दो टीचरों को, हैव यू अंडरस्टूड दिस सर्किट और नॉट? लेट मी चेक कौन किसका हाथ नीचे है, उसको माइक पे बुलाऊं। फिर लास्ट में देखना सर, गर्ल्स का खड़ा है लास्ट वाले बेंच में, सभी का खड़ा हुआ है। थैंक यू। इसका मतलब है मेरे बच्चों को ये चीज भी समझ आ गई। अब क्यों ना इसी चीज के बच्चा कहेगा सर ये रिजल्ट आया कैसे, रिजल्ट आया कैसे वो बाद की बात है, लेकिन रिजल्ट बता दिया आपको, उसके लिए तो डेरिवेशन होती है अलग से। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं डालने लगा हूं, देखते हैं मेरे बच्चे इसको कर पाते हैं कि नहीं। ओके, शाबाश सभी बच्चे, प्लीज पहले तो ये फार्मूले नोट कर लो दोनों, जल्दी से फार्मूले नोट करो। दोनों फार्मूले नोट कर लो बटे, बी क्विक प्लीज। Now I am going to erase it। और ये बड़े आसान फार्मूले थे। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। शाबाश। फाइंड द कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कैपेसिटी निकालनी, और हमारा जो सर्किट है वो है कुछ इस तरह से जो टीचर ने येलो कलर से आपके सामने बनाया। ए टर्मिनल
बी टर्मिनल और यहां पर उसने C3 लगा दिया और यहां पर आगे जाकर उसने यहां पर C1 लगाया और यहां पर उसने C2 लगाया और इन दोनों को यहां क्लब कर दिया और ए पॉइंट पर जोड़ दिया। शाबाश, ड्रा कर लो सारे बच्चे। और साथ में उसने क्या करा, एक और अलग से कैपेसिटर बना दिया जो कि यहां से यहां लगा दिया, उसकी वैल्यू C4 है। अब इन कैपेसिटरों की वैल्यू उसने बता रखी है। कहता C1 है 5 माइक्रोफेरेड। याद रहे, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। C2 की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफेरेड। C3 की वैल्यू दे रखी है 15 माइक्रोफेरेड और C4 की वैल्यू दे रखी है 20 माइक्रोफेरेड 20। और आपसे पूछा है CAB। शाबाश, सॉल्व करो वरना मैं करके दिखाऊंगा। एवरीबॉडी प्लीज ट्राई। आपको फार्मूले पता है, सीरीज में कौन सा लगाना है, पैरेलल में कौन सा, यू ऑल नो। मैं देख रहा हूँ नॉन मेडिकल के बच्चे नहीं कोशिश कर रहे, मेडिकल के सारे बच्चे कोशिश कर रहे। है कोई बच्चा जो जवाब दे दे बेटे, वरना लेक्चर टाइम पूरा हो जाएगा। जल्दी से बता दो, फिर मैंने सॉल्व भी करना है। जल्दी करो नहीं तो लेक्चर ओवर हो जाएगा फिर। कोई भी बच्चा क्लास में इसको कर सका हो तो बताओ। नहीं कर पाए तो देखो फिर मैं इसको करने लगा हूं। योर अटेंशन। फिर बेटे समझ लो, फिर बाद में कर नहीं पाओगे आप कहोगे सर सबसे पहले ना यहाँ पर 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट को आप L बोल दो, एक पॉइंट को M बोल दो। मैंने कहा बेटे ये क्यों बोले, क्योंकि बच्चा बोलेगा सर देखो जो L और M के बीच में ये दोनों कैपेसिटर है ना पैरेलल में है, तो पहले तो CLM निकाल लो। मैंने कहा कैसे निकलेगी सर, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है ना, तो आपने ही सिखाया था आप इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। मैंने कहा ओके, अगर ये पैरेलल सर्किट में है दोनों के दोनों, तो इनको डायरेक्ट ऐड करने से आएगा कितना सर, एक 5 फैरेड है एक 10 फैरेड है। जब आप इनको 5 + 10 करोगे तो आपका आंसर 15 फैरेड आना चाहिए, 15 माइक्रो फैरेड। मैंने कहा ओके बेटे, अब क्या करूं। दूसरा बच्चा कहता है सर जब आपने इसको सॉल्व कर लिया ना, तो इसका तो एक ही कैपेसिटर बन गया ये 15। अब आप C3 के साथ देखो, आप ऐसे करो, इस पॉइंट को आप इस पॉइंट को L ही रहने दो और इस पॉइंट को आप T कर दो, T। L और T के बीच में देखो कैपेसिटी। तो मैंने कहा बेटे कैसे निकालनी है L और T में। कहता सर पहले सर्किट बनाओ। आपने ये कैपेसिटर अभी अभी निकाला LM और उसकी वैल्यू थी 15 माइक्रोफैरड। मैंने कहा ठीक है। दूसरा कैपेसिटर आपका C3 ऑलरेडी दे रखा है और C3 की वैल्यू भी बाय चांस 15 फैरेड है। तो मैंने कहा अब क्या करूं बेटे, ये पॉइंट T आ गया और ये पॉइंट L आ गया, तो क्या करूं। अब बच्चा बोलेगा सर ये देखो दोनों सीरीज में है। तो आपने हमें सिखाया था सीरीज में अगर कैपेसिटर हो तो रेसिप्रोकली ऐड करते हैं। तो आपको ऐसे करना चाहिए 1/CLT is equal to 1/CLM plus 1/C3। तो 1/15 माइक्रोफेरेड प्लस 1/15 माइक्रोफेरेड, तो आपका आंसर आना चाहिए 2/15 माइक्रोफेरेड एलसीएम लेने के बाद। तो बच्चा कहेगा सर रेसिप्रोकल लेना मत भूल जाना, तो क्योंकि आपको तो ये चाहिए।
तो CLT कितना होएगा, इसका रेसिप्रोकल करते हैं 15/2 का रेसिप्रोकल, यानी कि 7.5 माइक्रोफेरेड। तब मैं उस बच्चे को बोला बेटे मेरे को तो आंसर तो कुछ और ही है, मेरे को तो ए और बी में कैपेसिटी चाहिए। तब बच्चा बोलेगा सर देखो आपने ये तीनों का ऊपर से सॉल्व कर लिया और वो आपका आया है 7.5, आप लगाओ। तो मैंने कहा बेटे CLT आ गया मेरा 7.5 फेरेड। और सर नीचे देखो C4 जो है वो तो आपको ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है 20 माइक्रोफेरेड C4। तो आपका यहाँ पर A टर्मिनल है और यहाँ पर B टर्मिनल है। तो मैंने कहा बिल्कुल, अब क्या करूं? तो बच्चा मेरे को बोलेगा सर अब आप एक चीज देखो, ये दोनों पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो आपने बोला था पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाता होता है, इसलिए आपका CAB आएगा CLT, ऊपर वाला CLT है बेटे और नीचे वाला C4 डायरेक्ट ऐड कर दो, यानी कि 7.5 माइक्रोफेरेड प्लस 20 माइक्रोफेरेड और आपका आंसर आ गया 27.5 माइक्रोफेरेड। 27.5। जिन बच्चों को ये सीरीज और पैरेलल का ये क्वेश्चन समझ आ गया है, प्लीज रेज योर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड इट? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश बेटे। और आपने अच्छा पढ़ा है आज। और आपको मैं एक खास बात बताऊं, आज दोनों क्लासों में से मेरे को किसी भी बच्चे ने तंग नहीं करा और एक भी बच्चा ऐसा नहीं था क्लास में जो पढ़ते पढ़ते आपस में बात कर रहा। शाबाश, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। टीचर्स फॉर कोऑपरेटिंग मी। और अगली बार आपको ये असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी आपकी क्लास में, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय। ये भी होता है।